everyone, myself Manasi Avlaskar. In this series of videos, I will be sharing my knowledge, my experience for the department housekeeping. I hope it will be helpful for you all. Starting with my introduction, I have done my MBA in Hotel and Tourism Management Studies. I started working with the Oberoi Mumbai as an OSA candidate. I worked there for 2 years. Then I got shifted to Westin Pune Koregaon Park as a team leader. I worked there for an year. Then I got shifted to Rare Hospitality. There I used to take care of hospital sector in housekeeping trainings. Then I got shifted to Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital. There I used to lead the housekeeping department and take care of the accommodations as well. And then I got married, I got shifted to Nasik over here. And here we have started with our own hospitality company with the name Maitri Hospitality. You can search us on Instagram, on Facebook with the name of Maitri Hospitality. In this, we work on 2 platforms, domestic housekeeping and commercial housekeeping. In this series of videos, I'll be more talking about housekeeping, my experience, my knowledge, how it works. So let's get started. Basically, we will start from a very past or a very old time of a human, that is from very ancient time. Our 3 basic needs, हमारी 3 जो basic needs है, food, clothing and shelter. पुराने ज़माने में आदि मानव, ancient man used to live in the caves. Then eventually development happened. Then we started living in huts. Then again development happened. We started building our own houses and now we are staying in properly constructed houses. Same with the concept of hotel. When in the ancient time somebody who is traveling from one place to another, they used to live in dharamshalas where they can stay for a night and next day morning they can again wake up and go to their own roads. So basically hotel starts from very ancient time, but a concept hotel has been new to everyone. So what is hotel? होटल का डेफिनेशन हम लोग जिसको बोलते हैं वो क्या है? A very basic definition for the hotel can be a place where you get accommodation and maybe the food on the exchange of money. पैसा देने पे आपको खाना और रहने की जगह मिले, ऐसी कोई जगह. When India is concerned, our nation, our country is very much hospitable. Our motto is Atithi Devo Bhava. It's been inculcated in us from our childhood that guest is the God. हमारे घर पे भी जब कोई मेहमान आते हैं तब हमें ऐसे ही सिखाया जाता है, उनको मुस्कुरा के ग्रीट करो, उनको कंफर्टेबल फील कराओ. सो दीज स्किल्स आर बीन इम्बाइब्ड इन अस फ्रॉम आवर ओन चाइल्डहुड. मूविंग अहेड टू द होटल्स. सो बेसिकली देयर आर 4 कोर डिपार्टमेंट इन द होटल्स. जो लोग होटल इंडस्ट्री से है या फिर जो लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, those people can relate it very much easily. There are 4 core departments in the hotel: food production, food and beverage service, front office, housekeeping. With these 4 departments, there are many more departments which are working behind the scene for the smooth functioning of the hotel. Like we have maintenance, human resources, learning and development, finance, where financial planning is concerned, accounts are concerned, purchase department we have security, we have sales and marketing. So there is bunch of people, bunch of department who are working for the smooth functioning of front line of the hotel. Let's go into the history of hotel. The first hotel which has been designed or been constructed and as an hotel was in New York with the name City Hotel. Concerning about India, the first hotel which has been established in India, that was in 1903, and that's a very famous hotel, that is Taj Mahal, Mumbai. Moving ahead, hotel,
जब भी हम लोग होटल बोलते हैं तब हम लोग को क्या याद आता है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसका फूड कैसा है, उसमें सर्विसेज कैसे है। सो इसी क्राइटेरियाज के ऊपर होटल का भी क्लासिफिकेशन होता है। ऑन बेसिस ऑफ like these criterias the hotel have been classified. So there are basically 6 criterias while concerning the classification of the hotel: location, target market, size and number of the properties, level of service, length of stay, and theme. So first we will start with the location. Before going to the example of hotel, we will take a very small example of टॉय शॉप, खिलौने की दुकान। खिलौने की दुकान जब हम लोग कोई किसी को ओपन करनी है, चालू करनी है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, कौन से लोकेशन में खिलौने की दुकान होनी चाहिए? जहाँ पे बाज़ार हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो। अच्छा होगा अगर स्कूल के नज़दीक हो, ताकि जब स्कूल के बच्चे आते जाते हैं तब वो चीज़ें वो देख सके एंड पीपल गेट मोर अट्रैक्ट टू द टॉय शॉप। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक टॉय शॉप की जो ऐसी सारी अच्छी लोकेशन पे है, और एक दूसरा टॉय शॉप है जो एकदम अंदर है, गली में है, बहुत अंदर जाना पड़ता है। कौन सा टॉय शॉप अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छे से काम कर पाएगा? सो द टॉय शॉप विच इज़ देयर नियर बाय टू द स्कूल, जो स्कूल के नज़दीक है, जो बाज़ार में है, वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। Same with the hotels. There is a first thing that comes into the hotel classification, that is location. Location के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है। So let's get started with the topic classification of hotels by the location. First, city center hotel और downtown hotel। ऐसी hotels जो हार्ट ऑफ द सिटी में है, जहाँ से सारी चीज़ें बहुत नज़दीक है, जैसे कि शॉपिंग एरियाज़ है, थिएटर्स है, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है, बिजनेस सेंटर्स है, बहुत सी चीज़ें। बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन से इज़ अगेन ताज मुंबई, जहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया नज़दीक है, एशियाटिक लाइब्रेरी नज़दीक है। आप थोड़ा सा बोट में से जाएंगे तो एलिफेंटा केव्स नज़दीक है। सो व्हेन ट्रैवलर इज कंसर्न, उसको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए नज़दीक है। इफ़ यू आर शॉपaholic देन यू कैन गो टू कुलाबा कॉजवे, अप टिल बांद्रा यू कैन कम डाउन इफ़ यू आर अ शॉपaholic person. Then there are many theaters nearby, there are many places where you can visit. It's in heart of the city, it's in heart of the Mumbai. So ऐसी होटल्स जो हार्ट ऑफ द सिटी में बसे। दूसरा टाइप है हमारा सबर्बन होटल्स। सबर्बन होटल्स ऐसी जगह पे जो हार्ट ऑफ द सिटी से थोड़े दूर होंगे, बहुत दूर नहीं, थोड़े दूर, जहाँ पे उनका रेट होटल्स का सिटी सेंटर होटल या डाउनटाउन होटल से थोड़ा कम होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लेमन ट्री होटल इन मुंबई इज एन सबर्ब होटल, जो थोड़ा सिटी से, हार्ट ऑफ द सिटी से थोड़ा लंबा है। थर्ड इज आर मोटल। मोटल इज बेसिकली अ मोटार होटल। मोटार होटल यानी जब हम लोग बहुत दूर ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे बाय रोड जाते हैं, तो हम रास्ते के बाजू में बहुत सारे होटल्स देखते हैं जहाँ पे आप एक रात के लिए रुक सकते हैं। ऐसे होटल्स का पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मोस्टली वो पेट्रोल पंप से नज़दीक होते हैं। सो जब भी आप वहाँ पे रहते हो तब पार्किंग स्पेस ज़्यादा है, सो यू कैन ईजिली पार्क योर व्हीकल। इन नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू वांट टू लीव, यू कैन fill up your car with a petrol and you can move ahead. For example, मोटल्स में कामत यात्री निवास कर्नाटका में जो है, these are the kind of motels जो रोड के साइड में है, जहाँ पे आप एक नाइट के लिए अच्छे से स्टे कर सकते हो। थर्ड इज योर एयरपोर्ट होटल। एयरपोर्ट होटल ऐसे होटल्स कि जो एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक हो, उसके नाम में ही उसका मतलब है। Airport hotels, the hotels which are very much nearby to the airport, like when Mumbai is concerned, JW Marriott है,
हिल्टन है, हयात रीजेंसी है, ऐसे होटल्स जो एयरपोर्ट से नज़दीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे होटल्स में कौन रुकता है कि जो लोग ट्रांजिट गेस्ट टाइप के होते हैं, वो ऐसे होटल्स में रुकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव टू फ्लाई फ्रॉम जयपुर टू UK. I will start from Jaipur, I will land in Mumbai, and my another flight is from Mumbai to UK. But when I start from Jaipur at 4 o'clock in the morning. I land in Mumbai at somewhat around 6 o'clock. But my flight for UK is on the same day, 1 o'clock in the night, or next day 1 o'clock in the morning. We can say yes. So ये जो बीच का टाइम है 6 बजे से दूसरे दिन के रात के 1 बजे तक का, ये टाइम हम लोग एयरपोर्ट पे बैठ के नहीं बिता सकते। सो जो एयरपोर्ट के नियर बाय होटल्स हैं वहाँ पे ऐसे ट्रांजिट गेस्ट रहते हैं। हो सकता है ऐसे होटल्स में एक दिन में एक रूम एक से ज़्यादा बार भी बिका जा सकता है। सो द होटल्स विच आर नियर बाय टू द एयरपोर्ट, दोज होटल्स आर कॉल्ड एज एयरपोर्ट होटल्स। नेक्स्ट इज अ रिसोर्ट होटल। रिसोर्ट लग्जरी है, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सी चीज़ें एक एरिया में ही हमें मिल जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल विच वी कैन से एज रिसोर्ट होटल्स, दी ओबरॉय उदय विलास है, या फिर ताजमहल पैलेस है, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें एक रूफ के अंडर हमें मिलती है। यू गेट फूड, यू गेट एंटरटेनमेंट, यू गेट प्रॉपर अकोमोडेशन। आप अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे है तो वहाँ के जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो फोक ट्रेडिशन है, उनका भी वो आपको वहाँ पे दिखाया जाता है। बेसिकली रिसोर्ट होटल्स ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे पीपल गो फॉर लग्जरी, जहाँ पे पीपल गो टू रिलैक्स, पीपल गो टू चिल। नेक्स्ट इज आर फॉरेस्ट होटल्स। फॉरेस्ट होटल्स जो जंगल के बीचों बीच हो, फॉरेस्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल द गेटवे है होटल इन अ गिर फॉरेस्ट, दी ओबरॉय वन्य विलास। ये जो होटल्स है वो फॉरेस्ट में है, जंगल में है, चारों बाजू से जंगल से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट इज आर फ्लोटल्स, दैट आर फ्लोटिंग होटल्स। फ्लोटल्स आर बेसिकली, एज द नेम इम्बाइब्स, आर द होटल्स आर लग्जरी लाइनर्स और शिप्स, जहाँ पे एक शिप पे सारी चीज़ें, सारे फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। यहाँ पे रूम्स की साइजेस छोटे होते हैं और जो फर्नीचर होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है, बिकॉज द होटल इज नॉट ऑन अ स्टेडी बॉडी बट ऑन अ मूविंग बॉडी। इट्स नॉट ऑन अ लैंड, इट्स ऑन अ वाटर, सो द फर्नीचर हैज टू बी फिक्स्ड। नेक्स्ट come to our boat hotels. Very simple. बेस्ट एग्जाम्पल इज शिकारा इन जम्मू, या फिर हाउस बोट हम लोग जिसे कहते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको होटल की तरह ही मिलती है, जस्ट इन अ बोट फॉर्मेट। बोट में वो होटल होता है। नेक्स्ट कम टू आर रोटल्स, होटल्स ऑन व्हील्स। बेस्ट एग्जाम्पल पैलेस ऑन व्हील्स जो राजस्थान में है। इसमें आपको सारी चीज़ें होटल की तरह प्रोवाइड की जाती है। उनका एक स्पेसिफिक रूट होता है, वो आपको वो एरिया की सैर कराते हैं। लाइकवाइज व्हेन वी कंसर्न और व्हेन वी टॉक अबाउट पैलेस ऑन व्हील्स इन द राजस्थान, इट गोज इन many places of Rajasthan which is important as a tourist is concerned, or as a tourism is concerned in Rajasthan. Another example can be Maharaja Express. These are the examples of hotels. So location के हिसाब से इतनी सारी जगह है, इतने सारे क्लासिफिकेशन है, इतने सारे पार्ट्स है जिसमें होटल डिवाइड हो सकता है। So in next video we will talk more about the hotel classification based on various categories like I said before. Till then, take care. Bye.